Okay, hello everyone. Welcome to Jigyasa Educations. Today we will learn the second chapter of science, that is acids, base and salts. Let's start. You already know in your previous classes that acids are sour in taste and it's changed the blue litmus to red, whereas bases are bitter in taste and changes the color of red litmus to blue. Acid क्या करता है, तुम्हारा ब्लू लिटमस को वो रेड कर देता है एंड बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. ओके, दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ एसिड एंड बेस. Next, let us understand the chemical properties of acids and bases. Let's first do one experiment type work. Let us collect these acids and bases from the laboratory. That is hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, and magnesium hydroxide, also aluminum hydroxide. Let us check by using litmus paper. Okay, so start from hydrochloric acid. Hydrochloric acid is a what acid? So it will convert the blue litmus to red. Okay, then sulfuric acid. Sulfuric acid also same. Nitric acid same, blue to red. Acetic acid blue to red. Okay, then next comes sodium hydroxide. It is a base, so sodium hydroxide change the red litmus to blue. Calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, these are also change the red litmus to blue. So what we learn? We learn that acid क्या करता है, blue litmus को red कर देता है and base क्या करता है, red litmus को blue करता है. Okay. Next, let's see how do acid and base react with metal. Okay, कैसे रिएक्ट करता है एसिड एंड बेस मेटल के साथ. सो हियर इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. व्हाट वी सॉ दैट हियर दीज आर द हाइड्रोजन गैस बबल्स. ओके, these are the hydrogen gas bubbles. This part is zinc. These are the zinc molecules or granules. Then this is the dilute sulfuric acid. We put the zinc granules in dilute sulfuric acid and here is the stand and we fix it with a cock. Okay, then what happened that we will collect these samples in soap solution and then the soap bubbles filled with hydrogen. When this experiment occur, then the soap bubbles filled with oxygen. If we put one candle in front of this soap bubbles, then that part is burning. Okay, burning of hydrogen gas with a pop sound, right? Like जैसे कि मान के चलो कि हम लोग हाइड्रोजन जिंक ग्रैन्युल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाले तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बबल्स डेवलप हुआ और ये गैस बबल्स डिलीवरी ट्यूब के अंदर जाके सोप सोल्यूशन के अंदर रहा. तो सोप सोल्यूशन क्या हुआ, सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन वो अकर हुआ ऊपर, जैसे ये देखो डायग्राम शो किया गया है. उसके बाद अगर हम लोग एक मोमबत्ती और कैंडल को इसके सामने रखेंगे तो ये जल जाएगा. उससे हम लोग क्या सीखे, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं. क्योंकि एसिड कौन सा है, एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, लेट्स सी. सो एसिड प्लस मेटल दैट विल गिव्स अस salt plus hydrogen gas. Here is the hydrogen gas and which type of salt it is given here, that is ZnSO4, zinc sulfate. Okay, because zinc is here and sulfate we are adding hydrogen gas sulfate. Next, how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts. Okay, here is the same procedure we follow. हम लोग क्या किए कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ रखे, सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किए. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब होता है कि बहुत कम कंसंट्रेशन है उसका, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग पानी मिलाए, वाटर हम लोग ऐड किए. ओके, सो वो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेवलप करेगा. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या किए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डाले. ओके, तो क्या हुआ देखते हैं.
See, here is the reaction. Na2CO3, that is sodium carbonate, plus hydrochloric acid, aqueous. Aqueous means dilute. Okay, that gives rise to sodium chloride, NaCl. Here is the sodium chloride and H2O, hydrogen, what? हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर, वाटर आया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर डेवलप हुआ. इधर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते तो वो होता, या फिर सोडियम, इधर सोडियम बाइकार्बोनेट लिए हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा कि हाइड्रोजन क्लोरिक ऐड हुआ और उसमें हम लोग को क्या मिला, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2. तुम बायोकार्बोनेट लो या कार्बोनेट लो, तुमको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. On passing the carbon dioxide gas evolved through lime water, यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या किए, हम लोग पास किए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे. ओके. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे हम लोग पास किए तो हमको क्या मिला, CaOH whole 2, that is lime water plus carbon dioxide, that will gives to you calcium carbonate precipitate. Okay, this is the white precipitate. तुम लोग को white precipitate calcium carbonate मिलेगा. ऑन पासिंग XX कार्बन डाइऑक्साइड, XX अगर हम लोग डाले तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. सो लाइमस्टोन चॉक, दिस इज द लाइमस्टोन, दिस इज द लाइम वाटर, दिस इज द लाइमस्टोन. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. दिस कैल्शियम कार्बोनेट का डिफरेंट फॉर्म होता है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल. ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड to give corresponding salt, calcium dioxide, carbon dioxide and water, that I already told you. Okay. How do acid and base react with each other? एसिड और बेसेस कैसे रिएक्ट होते हैं, जब एसिड और बेस ऐड होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर. सो बेस प्लस एसिड दैट गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर. लाइक NaOH एक बेस है, aqueous कंडीशन मींस व्हाट, डाइल्यूट कंडीशन. HCl एक बेस है, तो अगर NaOH प्लस HCl ऐड होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, NaCl एंड वाटर. ओके. सिमिलरली अगर मेटालिक ऑक्साइड ऐड होता है एसिड के साथ तो क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड दैट गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर. सी, सॉल्ट प्लस वाटर, अगर बेस ऐड किए तो भी सॉल्ट प्लस वाटर मिला एंड मेटल ऑक्साइड ऐड किए तो भी सॉल्ट प्लस वाटर मिला. सो वी कंक्लूड दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर said to be basic oxides. Okay. Next is reaction of a non-metallic oxide with base. अगर non-metallic oxide को हम लोग बेस के साथ ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो एक एग्जांपल दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is a base, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस. अगर हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने देते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड वाटर. लाइक सो क्या सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट सॉल्ट नेम इज कैल्शियम व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड plus calcium carbonate, carbon dioxide, that will gives you calcium carbonate which is a salt and water. So अगर देखो, अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेस के साथ ऐड करते हैं मतलब ये एक एसिड की तरह काम किया. सो नॉन मेटालिक एसिड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. राइट. तो तुम लोग को ये याद रखने में इजी होगा कि मेटल बेस, नॉन मेटल एसिड. ओके. Let's go to next. Here is one experiment like what acid solution gives. Okay. See here, this is a dilute acid solution, dilute HCl solution. ये एक dilute HCl solution है. इसमें हम लोग दो नेल पुट किए, दो नेल को एक 6 वोल्ट बैटरी और एक स्विच के साथ कनेक्ट किए. अगर हम लोग इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन ऐड करते हैं तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है. तो एसिड अगर हम लोग डालेंगे हाइड्रोजन आयन तो ये क्या होगा, एसिड ग्लो करेगा. ओके, सॉरी, बल्ब ग्लो करेगा. व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सोल्यूशन, क्या होता है अगर एसिड और बेस एक वाटर सोल्यूशन में ऐड होता है तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. हाइड्रोजन आयन कभी एग्जिस्ट नहीं करता अकेला. बट इफ दे आर एग्जिस्ट, अगर आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स they exist. Okay, thus hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous because H plus आयन अकेला कभी नहीं रहता, अगर रहता तो जल जाता है. तो H plus आयन aqueous मीडियम में रहता है और हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O plus. ओके, एसिड गिव्स H3O plus और H plus aqueous आयन इन वाटर. मतलब एसिड हमेशा हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन देता है. राइट. सो HCl, हियर इज द रिएक्शन, HCl plus
H2O, that gives rise to H3O plus Cl minus. Okay. Next, bases generally what? एसिड क्या दिया H3O प्लस और H प्लस. सो बेसिस क्या देता है जनरली? हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर. बेसिस जनरली गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर. सो व्हिच आर दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज कॉल्ड अल्कली. सो ये सब याद रखो. एसिड क्या देता है? H3O प्लस एंड H प्लस. बेस क्या देता है? OH माइनस. बेस को अल्कली कब बोला जाता है? जब वो सॉल्युबल होता है वाटर में. ओके, ये सब छोटा छोटा चीज याद रखो तो तुम लोग को आसानी रहेगा फ्यूचर में. So here see, acid plus base that gives rise to salt plus water. So इधर क्या हो गया कि H aqueous plus OH aqueous, OH minus aqueous. एसिड क्या देता है? H plus ion. OH क्या देता है? बेस क्या देता है? OH minus ion, OH minus. So H plus aqueous plus OH minus that gives rise to you water. Right? हम लोग पढ़े थे कि H plus OH मिलने से वाटर होता है. So mixing an acid or base in water results in decrease in the concentration of ions per unit volume. अगर हम लोग एसिड में या फिर बेस में वाटर मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन लो हो जाता है. सो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड वाटर, डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वी ऐड वाटर इन एसिड और बेस टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन फॉर प्रैक्टिकल यूज. हम लोग डायरेक्ट एसिड डायरेक्ट बेस यूज नहीं कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो जल जाता है और या फिर हार्मफुल हो सकता है. सो उसको उसका हार्मनेस को कम करने के लिए वी ऐड एसिड, वी ऐड वाटर सो दैट देयर कंसंट्रेशन रिड्यूसेस. हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस, कितना स्ट्रॉन्ग होता है? सो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या होता है? लेट्स सी. स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड. सो एसिड में या फिर बेस में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है या फिर सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, उसको जानने के लिए हम लोग एक पीएच स्केल डेवलप किए. द P in the pH scale stand for potence in German. Okay, meaning power. Power कितना होता है H का, उसको बोलते हैं pH. On the pH scale, we can measure generally from 0 to 14. 0 is very acidic, 14 is alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Okay. So acid और basic का जो डेफिनेशन है वो pH से भी पता चल सकता है. इफ द pH वैल्यू इज लेस देन दैट solution is acidic. If the pH is more, the solution is basic. Okay, higher is the hydronium ion, lower is the pH value. So hydronium ion higher means acidic. Let's see, here is the scale. The neutral value is 7, and if we increase the pH, the basic nature increasing. If we decrease the pH, the acidic nature decreasing. If we decrease the pH, H plus ion concentration is more, and if we increase the pH, OH plus ion concentration is more. So you can see that the blue line is increasing from 14 to 0, but decreasing from 0 to 14 means hydrogen ion decreases from 0 to 14, but at the same time OH minus ion is increasing from 0 to 14. Okay, so here it is given that increase in H plus ion concentration from 7 to 0 and decrease in H plus ion concentration from 7 to 14. Understand? So neutral is 7, acidic is 0 to 7, basic is 7 to 14. Here is another litmus paper color. Okay, you can see that this is very acidic, so gastric juice is very acidic. It is near about 1.5 to 2. Lemon juice is nearly 2.2. Orange slice is 4.17. These are the acidic. Okay, then blood is 7.4, water is 7, milk of magnesia is 10, sodium hydroxide solution is about 14 because it is more basic. Okay, so this is the pH paper. Importance of pH in everyday life. What are the importance?
our body works within a pH range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only a narrow range of pH range. Okay, अगर pH ज्यादा हो जाता है तो हम लोग का तबीयत बिगड़ सकता है. Okay, pH of rain water is less than 5.6. Okay, अगर लेस देन हुआ 5.6 का pH रेन वाटर का, then it is called acid rain. जब ये acid rain, but when the acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. Okay, जब pH का वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है उसको एसिडिक रेन बोलते हैं. ये एसिड रेन जब पानी में मिलता है तो हार्मफुल होता है. किसके लिए? जो लोग रहते हैं पानी में, लाइक फिश and other animals. Okay, plants requires a specific pH range for healthy growth. Okay, plants भी pH एक healthy growth करने के लिए उनको requirement होता है. Our also this is one like interesting phenomena that our stomach produces hydrochloric acid. Okay, it helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion of the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. हम लोग का स्टोमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लो होता है जिसका कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा कम है. ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है. अगर ये ज्यादा फ्लो होता है तो हम लोग को एसिडिटी होता है, इरिटेशन होता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटी एसिड यूज करते हैं. एंटासिड यू नो, तुम लोग यूज करते हो घर पे कि हाँ अरे मम्मी एंटासिड दे दो, मेरा पेट खराब हो रहा है, ये सब. तो ये क्यों होता है? जब pH का वैल्यू ज्यादा हो जाता है एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. सो टूथ डिके स्टार्ट्स फ्रॉम द pH ऑफ द माउथ व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. अगर 5.5 से नीचे आ जाता है pH तो क्या होता है कि टूथ डिके स्टार्ट होता है. तो हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंस देखे pH का, बहुत इंपॉर्टेंट है. pH से ही हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का बॉडी हार्म हो रहा है कि नहीं, सॉइल अच्छा है कि नहीं, रेन वाटर ठीक है कि नहीं, टूथ डिके हो रहा है कि नहीं. तो ये सब चीज बहुत अच्छे से पता चल जाता है pH से. ओके, नेचुरल सोर्स से भी एसिड मिलता है. क्या मिलता है? जैसे कि विनेगर से क्या मिलता है? एसिडिक एसिड. ऑरेंज से साइट्रिक एसिड, टर्मेट से टाटारिक एसिड, टमाटो से ऑक्जेलिक एसिड, लाइक दैट बहुत सारे एसिड मिलता है. तो ये जो नेचुरल सोर्स है इसको तुमको याद रखना है क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं इससे. नेक्स्ट, okay, see, salt of strong acid and strong bases are neutral with pH value 7.0. जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रांग बेस है, उसका pH लगभग 14 है. एंड HCl उसका pH भी सब लगभग 1 2 के बीच में रखा है. HCl ऑल्सो एक बहुत स्ट्रांग एसिड है. अगर ये दोनों को मिलाकर हम लोग एक सॉल्ट निकालेंगे दैट इज NaCl, वो एक स्ट्रांग, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा. उसका वैल्यू कितना होगा? 7. ओके. ऑन दी अदर हैंड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलता है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, जस्ट लेस देन 7. और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलता है तो एक बेसिक सॉल्ट होगा, उसका pH होगा मोर देन 7. अंडरस्टूड? सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट. यू नो सी वाटर इज सॉल्टी. सी वाटर समंदर के पानी में बहुत सारा सॉल्ट होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड उससे सेपरेट होता है जिसको हम लोग नमक के रूप में यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ओके, लेट्स सी व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, okay, it decomposes to form sodium hydroxide. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है सोडियम क्लोराइड के अंदर, ये डिकम्पोज हो जाता है और ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. इसको बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस, बिकॉज क्लोरो फॉर क्लोरीन and alkali for sodium hydroxide. Okay, let's see the reaction. NaCl aqueous condition, सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम लोग पानी मिलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड वाटर. ओके, सो वाटर गैस के थ्रू एवापोरेट हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर अल्कली एंड Cl2 फॉर क्लोरो. सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड क्लोरो अल्कली. नेक्स्ट सी ब्लीचिंग पाउडर. व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर को पता है तुम लोग सैनिटाइज के लिए यूज करते हैं. घर में अगर कहीं ज्यादा गंदगी होगा तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से साफ करते हैं. तो कैसे प्रिपेयर होता है ब्लीचिंग पाउडर? लेट्स सी. क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? क्लोरीन गैस. तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, दैट इज CaOH whole 2.
Okay, bleaching powder is represented as CaOCl2. So CaOCl2 is the formula for bleaching powder. But the actual decomposition is very complex. ब्लीचिंग पाउडर का डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत कम्प्लेक्स है. सो तुम लोग के लिए बस इतना याद रखो कि उसका फॉर्मूला है CaOCl2 और ये क्लोरीन गैस से प्रिपेयर होता है. ओके, हियर इज द इक्वेशन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन दैट गिव्स राइज टू calcium oxychloride. This name is calcium oxychloride, but it is known as bleaching powder. Okay, next, what are the use? As you know, it is used for drinking water free from germs, as an oxidizing agent. It is used in many industries for bleaching cotton and linen in textile industry में भी यूज होता है, पानी को साफ करने के लिए यूज होता है, बहुत सारा जगह पे यूज होता है. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू यूज होता है. नेक्स्ट है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या करते हैं हम लोग? खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. लाइक तुम लोग जो खाते हो पकोड़ा, चिकन पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, जो भी खाते हो उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3. ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड यूज करके हम लोग बेकिंग सोडा बनाते हैं और उसको खाने का सोडा बोलते हैं. ओके, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा किस में यूज होता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं. जो क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या करता है? बेकिंग सोडा ब्रेड और केक को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाते हैं. उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं. जैसे देखो कैसा होता है. तुम देखे होगे कि जब तुम्हारे मम्मी लोग मैदा से पूरी बनाने के लिए रखते हैं तो मैदा को थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं. तो क्या होता है? मतलब मैदा को कवर करके रख देते हैं. तो क्या होता है? वो थोड़ा फूल जाता है, तो वो स्पॉन्जी हो जाता है. तो वो क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. ओके, बिकॉज जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तुम हाइड्रोजन ऐड करोगे, आयन ऐड करोगे फॉर एनी एसिड, तो इट गिव्स राइट टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो उसको स्पॉन्जी बना देता है और सॉफ्ट बना देता है. ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. एंटासिड में हम लोग पढ़े थे पहले, क्यों यूज करते हैं? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा फ्लो करता है तो एंटासिड खाते हैं. ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. तो फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब में ऑल्सो बेकिंग सोडा यूज होता है. ओके, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या होता है? जो हम लोग यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए. सर्फ जो रहता है तुम लोग का, उसको वो एक टाइप का वॉशिंग सोडा है. ओके, तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है? इट कैन बी obtained from sodium chloride, that is NaCO3.10H2O. वॉशिंग सोडा, ये 10H2O क्यों रहता है हम बाद में पढ़ेंगे. you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives you washing soda. Okay, so Na2CO3 plus 10H2O, sodium carbonate plus 10H2O, that gives rise to washing सोडा. ओके, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा किस में यूज होता है? इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है. मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स में यूज होता है. इट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पसेस. यू नो दैट सोडियम को हम मतलब वॉशिंग सोडा को हम लोग साफ करने के लिए यूज करते हैं. और इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए ऑल्सो हम लोग वॉशिंग सोडा यूज करते हैं. अच्छा, ये देखो, ये क्या है? ये एक बर्नर है. बर्नर के थ्रू हम लोग एक टेस्ट ट्यूब रखे हैं, टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम लोग कपर सल्फेट क्रिस्टल लिए हैं और उसको आग लगाए हैं. तो तुमको क्या दिखेगा कि कपर बबल्स फ्लो कर रहे हैं इसके ऊपर पानी के साथ. इसका मतलब ये है कि हमेशा सल्ट कुछ ना कुछ पानी साथ में कंटेंट करता है, तो इसलिए उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. कपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, जो क्रिस्टल रहता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी रहता है. व्हेन यू हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स व्हाइट. तो जो हीट करेंगे तो वो वाटर रिमूव हो जाएगा. इसीलिए सोडियम के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ 10H2O था. देखो ये रहा 10H2O. जो 10H2O था इसके लिए था. ओके, अंडरस्टूड.
नेक्स्ट दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydrate CaSO4 dot half H2. This is called plaster of Paris. Okay. जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं, वो क्या होता है कि उसका वाटर लॉस हो जाता है और वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस. हम लोग इसे यूज करते हैं कहाँ पे? अगर हड्डी वड्डी टूटता है तो डॉक्टर इसे प्लास्टर के थ्रू सपोर्ट के लिए यूज करते हैं. ओके. तो जब तुम लोग का किसी का हड्डी टूटा नहीं हो, मतलब टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटा भी होगा तो तुम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करोगे और डॉक्टर लोग इसे ही रेफर करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को. ओके. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम once again giving a hard solid mass. अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर देते हैं तो वो जिप्सम दे देगा, और अगर जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देगा. सी देख, this is the reaction CaSO4 dot half H2O plus 1.5 H2O that gives rise to CaSO4 2H2O. Understood? So CaSO4 2H2O is the जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2. सो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े? हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि सॉल्ट एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच का यूजेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड में यूज करते हैं तो क्या होता है. बहुत सारा कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े. लास्ट में हम लोग क्या पढ़े? यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, वाटर सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर होता है. ओके. सो thank you. If you have any doubt, you can comment.